सर आगे सर आगे। हेलो सर। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चेक कर लें कि अगले बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, ताकि हम जो है हमारी मस्ती कंटिन्यू। आपकी क्लास में बेटा स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं सब के सब? खुशबू बेटा, क्लास में सोते नहीं है? आप ऐसे दिल लग रहे हो मेरे को जैसे कि सो रहे हो। आपका ऑडियो म्यूट है बेटा। यस सर। नहीं, वो देख के मुझे यूं लग रहा था जैसे सो रहे हो आप, लेकिन आप जो है गाने सुन रहे हो बैठे बैठे वहां पे, हैं? नो सर। बेटा गाने तो आप ही के यहाँ चल रहे हैं, और तो कौन चलाएगा? सर टीवी चला रखा है सिद्धि ने। तो बेटा वो फिर बंद कराओ आप। यस सर। So I think only these will be the students now. Anyway, then with these only we'll start it. यस सर। Okay, I'm going to. यस सर। So we are today to discuss the operations of rational numbers. ये डिस्कस करना था ना कि हमें रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है. So we'll discuss all one by one. Yes, just a minute. Okay, so first of all, it is clear to you all that what are rational numbers? Any number which can be written in the form P upon Q.
that is known as rational number. And what is P and Q here? P and Q, they are integers with the condition Q not equals to 0. Q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए. So with these conditions, if any number can be written, then that is known as rational number. हालांकि इसमें एक condition और होती है. There is one more condition also कि P और Q integers तो है ही हैं. Also, they are co-prime. P और Q क्या होने चाहिए? Co-prime भी होने चाहिए. Now, first I'll tell you what are co-prime numbers. या आप में से कोई बता सकता है what are co-prime numbers? देखो, for example, if I write 3/5 and on the other hand I write say 15/25. Yes, Khushbu, you want to say something? Yes, sir. Yes. Sir, why only PQ are integers, not A and B? At present, beta, I did not say anything about A and B. I said that the rational numbers which can be written in the form P/Q. If you say that a number which can be written in the form A/B, then A and B will be taken as integers. But because I said P/Q, I did not say A and B. If you are saying A/B, then the condition you will be writing as A and B are integers and B is not equal to 0. Then this condition will be written. So it doesn't matter whether you take it as P/Q or you take it as A/B. So now let me come to this co-prime. If you write any number, one in the form 3/5 and other in the form 15/25. Here, this is P and this is Q. Whereas in the second one, 15 is taken as P and 25 is taken as Q. Now, 3 and 5, these are co-prime. Whereas 15 and 25 are not co-prime. Any idea why it is so? आप में से बता सकता है कि 3 और 5 तो co-prime कहलाते हैं, 15, 25 नहीं है. Any idea why it is? देख के बताओ क्या आपको समझ में आता है कि क्यों हो सकता है ऐसा? सर ये 3/5 कट नहीं हो सकता, पर ये 15/25 कट हो सकता है. यस, 3 और 5 जो है ये सिंप्लीफाई नहीं होते, आप इसको सिंप्लीफाई काट नहीं सकते हो, जबकि 15 और 25 कटते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं. किस टेबल पे सिंप्लीफाई होते हैं? Or only 5. $15 and 25. अब 3 और 5 जो है वो कट नहीं सकते, लेकिन 15 और 25 जो है वो 5 की टेबल में कट सकते हैं, क्योंकि 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 25.
So we say that 15 and 25 they are not co-primes. अब co-prime कब होंगे? If any two numbers have only one as common factor. If they have only one as the common factor, then they are called co-primes. और 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर फैक्टर में आता है, कॉमन फैक्टर होता है, then they are not co-primes. So here 3 and 5. अब 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 multiply 3. 5 के क्या होते हैं? 1 multiply 5. तो 1 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। वहीं 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 into 3 into 5. 25 के फैक्टर्स होते हैं 1 into 5 into 5. तो 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन साथ में 5 ही कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है इसमें, इसलिए 15 और 25 जो है वो को-प्राइम नहीं है। Got it? Getting the things done? Yes, sir. So here now, अब हम इनके ऑपरेशंस की बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने पिछली क्लास में भी वो डिस्कस किया था आपसे, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जैसे 2/5 प्लस 7/5, denominators if they are same, then what we will do? We will keep denominator as it is. Denominator को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम सेम रखेंगे, and 5 will be multiplied with 2, that is 10, plus 5 will be sorry beta, Sir, 2 plus. डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम डिनोमिनेटर को इसको 5 रख लिया और 2 plus 7 as it is हम ऐड कर देंगे, 9/5. 5. सब्ट्रैक्ट करना है 3/11 माइनस से 7/11. यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 will be kept as it is and you will simply subtract the numerators. 3 और 7 को subtract कर दोगे, तो 3 और 7 when you subtract, what do you get? 4 7. 4 11. 3 minus 7 -4. minus 4 upon 11. 11. Now if the denominators are different, अगर denominators अलग हो, for example 5/8 and say 3/14, 5/8 and 3/14. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो 8 और 14 डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स 8 and 14, और उसके साथ में 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 के साथ, प्लस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, एंड देन सॉल्व इट। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 into 14 इट इज 70,
plus 3 into 8, it is 24, 24. और 8 into 14, 8 into 14 क्या होता है? 14 8 जा, कौन बताएगा जल्दी से? यस 32. है 32. 14 8 जा, So 48 za. So 320. बेटा 14 अच्छा sir 14. स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या आपको? No sir, I cannot see screen properly. It is 14 1 4 14 multiply 8 112. 112. 112. So 70 plus 24, it gives you 94 upon 112. 12. ये है। और फिर इस आंसर को हम और क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अब दोनों क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इनको? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 94 को 2 से डिवाइड करेंगे 47, और 112 को भी 2 से डिवाइड करेंगे 56. 6. दिस इज द आंसर। और इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करें, इफ वी डू इट इन अनदर मेथड, देन इट विल बी डन लाइक दिस। सबसे पहले हम 8 और 14 का एलसीएम लेंगे। यू ऑल नो हाउ टू टेक द एलसीएम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, this is the way to do take the LCM. We will factorize it, divide both by 2 4 times 7 times, and now if you want you can again divide it by 2 2 to the 4, but 7 you cannot divide, so it will be like this. तो हमारा जो LCM होगा वो क्या होगा? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. Sir, 56. Yes, it is 56. तो हम इन दोनों का जो LCM है वो क्या लिखेंगे? 56. यहां हमारे पास देखो LCM आया था 112, whereas here it is 56. अब यहाँ पे क्या होगा? When you are taking the LCM at that time, here now what we will do, ये जो 5 है फर्स्ट न्यूमरेटर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 56 divided by 8. How many times of 8 is 56? 8 की टेबल में 56 कितने टाइम पे आएगा? 7 times. 7 times. प्लस सेकेंड न्यूमरेटर क्या है? 3. अब 14 की टेबल में 56 कब आता है? 4 times. 4 times. So 3 will be multiplied by 4. Oh. Now 5 into 7, 35. 35. 3 into 4, 12 12. on 56, और 35 plus 12 करोगे 47. 47 upon 56. 56. तो ये आपका फाइनल आंसर है। और दोनों आंसर्स को कंपेयर करो, देखो यहाँ भी 47 upon 56 और यहाँ भी 47 upon 56. So we get the same result in both the cases. Yes. Okay? तो ये है एडिशन। और जैसे हम एडिशन करते हैं, the same way we are going to subtract. सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा, सिर्फ ये जो बीच में प्लस है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एलसीएम लेके ही करना है जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट। मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, इसमें एक हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई में हम कभी भी एलसीएम नहीं लेते हैं। वी नेवर टेक एलसीएम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके,
यहां हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जब हमें करना है तो हम एलसीएम लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स 3 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर्स 2 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है इसमें। तो 2 into 5 10, 3 into 7 25. 21. so it is 10 upon 21। ये अगर सिंप्लीफाई हो तो हमें करना है, अदरवाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यही अगर होता हमारे पास से 4 upon 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 upon से 2, तो हम क्या करेंगे, 4 into 15 and 9 into 2। अब 15 4 से क्या होता है 60, 9 2 से 18, so 60 upon 18। अब 60 upon 18 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके, यू कैन सिंप्लीफाई इट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 6 की टेबल में आते हैं दोनों, 6 10 से 60, 6 3 से 18, तो ये 6 की टेबल में 10 टाइम्स, ये 6 की टेबल में 3 टाइम्स। अब इसी को देखो, यहां हमने सिंप्लीफाई कहां किया, लास्ट में किया ना, इसी को हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 into 15 upon 9, सॉरी 4 upon 9 into 15 upon 2। आप ये स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज यू मे नॉट राइट इट, ये आपके ऊपर है, ये जो स्टेप है। यू कैन सिंप्लीफाई हियर इटसेल्फ, आप यहीं पे सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई किसको करना है, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई करना है। जैसे 4 और 2, ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 are 2 और 2 2 are 4। देन 9 and 15, 9 और 15 किस टेबल में आते हैं, 3 3 are 9 and 5 are 15। तो अब आपके पास क्या बचा न्यूमरेटर में, 2 multiply 5, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 multiply 1। So this is 10 upon 3। तो मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में भी छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको डिवाइड करना है 2 upon 5 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम डिवाइड करें से 4 upon 10, तो इसमें क्या होगा, ये जो डिवीजन का साइन है, दिस यू हैव सिंपली टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, डिवाइड का साइन आता है, उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो नंबर है, डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, Opposite. इसको हम रेसिप्रोकल इनवर्स लेंगे। इसका जो 4 upon 10 है उसको हम क्या बना देंगे, 10 upon 10/4. सिर्फ एक ये काम डिवीजन में आपको एक्स्ट्रा करना है, दैट इज डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और डिवीजन के बाद जो नंबर है, हमेशा याद रखना कि डिवीजन के बाद में जो नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। Reciprocal करते हैं. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा लिखना। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 upon 5 मल्टीप्लाई 10 upon 4, 5 और 10 कैंसिल होंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10,
2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये 2 1s are 2 और 2 1s are 2। तो हमारे पास क्या बचता है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 अपॉन 1 जिसका फाइनल आंसर क्या होगा 1। अब बेटा वैसे इसमें क्लास का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है, किसी भी वक्त बंद हो सकती है क्लास, ठीक है। तो आज इतना ही करता हूं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप करके तैयार रखना।